A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start a very important topic of English grammar, that is preposition. Okay. So today we will discuss about the preposition. Okay. So first of all, you have to know about the preposition. कि preposition होते क्या है? Yes. You know that the preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. प्रेपोजिशन एक वर्ड होते हैं, वो शो करते हैं, क्या शो करते हैं? रिलेशन मीन संबंध शो करते हैं नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। देखिए, इफ योर सेंटेंस इज रिटन एज द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, जो क्या है? कैट है, इज सिटिंग अंडर द टेबल। जब ये अंडर द टेबल हम बात कर रहे हैं तो यू कैन नोटिस दैट द अंडर इज हियर एज अ प्रेपोजिशन। तो हमको क्या बताया है कि जो कैट की जो पोजीशन है वो क्या है? अंडर द टेबल है। ओके, सो नाउ यू नोटिस दैट द अंडर इज हियर एज अ प्रेपोजिशन। तो हमको क्या बता रहे हैं कि जो हमारा जो कैट का जो रिलेशन है, कैट का जो संबंध है, वो जो कैट बैठी है वो क्या समझ में आ रहा है? टेबल के नीचे। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो ऑन क्या होता है हमारा? एज अ प्रेपोजिशन होता है। ओके, सो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भागों के साथ बताते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन। डियर स्टूडेंट, आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। यस, आई एम राइटिंग अ सेंटेंस। शी इज अंडर द टेबल। शी इज अंडर द टेबल। Okay, student, she is under the table. I'm writing a sentence. Another, the cat is on the table. Okay, so the cat is on the table. You notice that the on is a preposition which comes before the table and relates the table with another noun cat. जैसे cat और table के बीच में क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहा है, relation बता रहा है। जो relates क्या कर रहा है? Relates the table. Yes, the cat present in a sentence. तो cat की जो position हमको बताई जा रही है, cat क्या है? table के अंदर है। So likewise in the other sentence, अगर हम इस sentence की अगर हम बात करते हैं, she is under the table. Okay, so likewise in other sentence, under is a preposition which comes before the tree. Which comes before the table. तो table से she is under the table या under the tree हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या है वो? हमको बता रहे हैं उसके टेबल के नीचे की जो हमको पोजीशन बता रहे हैं। एंड रिलेट्स द टेबल विद प्रोनाउन शी। और जो टेबल है रिलेट्स किससे कर रहे हैं? शी से। तो शी इज अंडर द टेबल। सो नाउ अंडर इज हियर एज अ preposition. Okay, so you notice that there are so many preposition as in, on, at, under, in front of. Okay, with. Okay, so we will discuss one by one. Okay, student, so let's start the kinds of preposition. So today we will discuss about the different types of preposition. If you all know that the different types of preposition, yes, first preposition of time, preposition of place, and preposition of direction. So today we will discuss one by one. Yes, first is here as a preposition of time. So what is a preposition of time, student? Yes, it means a preposition of time allows you to discuss a specific time period such as date on the calendar, one of the days of the week, or the actual time some things take place. Means जो preposition of time हमको ये बता रहा है कि हमको पता चलता है कि कोई भी specific time के बारे में, या डेट कैलेंडर में जो भी डेट होती है, या वन ऑफ द डेज ऑफ द वीक का कोई भी एक डे हो, और द एक्चुअल टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम क्या हुआ है, सो समथिंग टेक प्लेस, वो हमको कौन बताता है? preposition of time. But in the preposition of time, the which preposition we use? Yes, the three one is here, at, on or in. कौन से preposition हम use करेंगे? At, on and in. So at we use for a time, on we use as a for a days, and in preposition we use for a month or year. Clear student? जब भी हम टाइम के बारे में, टाइम के बारे में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे तो हम एट preposition यूज करेंगे। किसी भी हम डेज की हम बात करते हैं तो हम इसकी बात करेंगे, कौन सा preposition यूज करेंगे? ऑन। जब हम मंथ की या ईयर की हम बात करेंगे तो हम preposition यूज करेंगे इन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. Number one, I will reach at 4 p.m. Clear? So here time is mentioned here 4 p.m. So before the 4 p.m. we use as a at, because at is used for a time. Clear?
In the second sentence, the exam will start on Monday. Okay, student, so Monday is your yes, no days of the week. Okay, so before this we use on preposition. Next one is here, he will come in January. अब आपको पता है January, आपको पता है the you notice as a name of a month, January, February, March. Okay, so before the month, okay, we write as a, we use as a preposition in. नंबर फोर्थ सेंटेंस, इंडिया गोट इंडिपेंडेंट इन 1947. जब भी हम ईयर की बात करेंगे तो भी हम क्या यूज करेंगे, preposition हम यूज करेंगे इन. ओके, सो दिस इज अ preposition ऑफ टाइम. तो आपको क्लियर हो गया. सो we will discuss again. At is used for time, on is used for days, in is used for month and year. Clear, student? Next is here, this is the chart of at, in or on. Yes, at is used for precise time. कोई भी टाइम के बारे में हम बात करेंगे, पर्टिकुलर हम स्पेसिफिक टाइम हमको बता दिया है, तो here we use as a time as at 10:30 am, at 8 o'clock, at bed time, at breakfast. Okay, so in is used for month, years, decades, centuries and long periods of time. For example, you can see in 16 years time, in 1991 we use as a in. On is used for a days and date. Yeah, already we have already discussed that on a summer evening, on a Christmas day. देखिए कोई भी जो हम डे की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रिसमस डे है तो हम यूज करेंगे on क्रिसमस, on फ्राइडे we use as a preposition on. हम कौन सा preposition यूज करेंगे, on. Now, next preposition is here, preposition of place. Okay, so a preposition of place is a word which helps to describe where something or somebody is. तो preposition of place है, मतलब जगह के बारे में हमको ये बता रहा है, तो हमको सहायता करते हैं कि where मतलब कहाँ पर कोई चीज है या कोई है. A preposition of place describe the location of something. ये हमको बताता है कि किसी भी चीज की location क्या है. Clear that? Okay, so in this we also use as here in, on or at. So where we use in, on or at as a preposition of place? Yes. If for an in preposition we use as a for a volume or area. जब भी किसी का volume या कोई area की बात होगी तो हम preposition use करेंगे in. For a surface we use as a preposition on. कोई भी surface, कोई भी सतह होगी इसके लिए हम preposition use करेंगे on. And for the as a point of point, किसी भी particular point के बारे में भी I'm talking about the particular point. So here we use as a at preposition. Clear? So let's take an example to better understand. Number one is here, he is sitting in the chair. So now, so here we use as a in. Why we use in preposition? So आप देखिए, you can notice here as a chair. आप जो notice कर रहे हैं chair, तो chair के अंदर आप क्या कर रहे हैं, volume, area. Okay, so he is sitting in the chair. तो in के लिए हमने क्या यूज किया बेटा, हम chair के लिए यूज किया हमने in. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक कहाँ पर है, टेबल पे है ना. तो अब हम बुक की बात करेंगे तो बुक कहाँ पर है, टेबल पर है. तो अब यू कैन सी अ सरफेस, कोई भी एक सरफेस है, बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, है ना. तो कोई भी चीज सरफेस की हम बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन preposition. क्लियर. नंबर थर्ड इज हियर, आई एम एट द रिसेप्शन डेस्क. ओके, सो हियर वेयर वी यूज एज एट. देखिए बच्चों, किसी भी हम पर्टिकुलर, किसी भी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसी भी जगह को, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मींस पॉइंट कर दिया हमने किसी भी जगह को. तो यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क क्या है, एक पॉइंट है ना. तो उसको हम बता रहे हैं कि मैं एक रिसेप्शन डेस्क में, तो पर्टिकुलर आपको पॉइंट पता चल गया कि आप वहां पर. तो हियर वी यूज एज अ एट preposition. तो हम क्या यूज करेंगे, एट preposition यूज करेंगे. हियर नेक्स्ट इज, here as example, the apples are in the basket. तो देखिए जो apples है वो कहाँ पर है बेटा, basket में. the boy is sitting on the chair. boy कहाँ पर है बेटा, on the chair, है ना. तो on the chair, अब हमने बात करी थी in the chair, लेकिन वो chair आपने जब देखी थी तब उसमें क्या था, वॉल्यूम की बात हो रही थी. लेकिन एक सतह की बात करते हैं, इसके दो हैंड नहीं है ना, तो ये क्या है, एक सिंपल है, इसका एरिया नहीं है. तो here we use as a on the chair. Okay, so let's start the at, in or on according to a table. So at we use particular, as you know, specific point के लिए हम use करते हैं, at college, at home, at reception, at school, at the bottom, at the cinema. So here in we use as in a taxi. तो देखिए in use कर रहे हैं ना, एरिया की वॉल्यूम की बात होगी. देखिए, in the sky, in the building tower, in a row, in the newspaper, in the garden. Clear.
नाउ नेक्स्ट वन इज हियर ऑन द वे, मतलब सत्य की बात है, ऑन द रेडियो। अब देखिए ये जो हमारा, मैंने आपको बताया कि अभी हम सरफेस की बात करते हैं, हियर वी यूज एज ऑन द वे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हियर ऑन द रेडियो, ये रेडियो पर बात कर रहे हैं, रेडियो पर बोल रहे हैं, रेडियो पर गाना आ रहा है, so here we also use as on preposition। on the page, please open the page number 47, okay, okay, here we write yes on the page number, है ना, we use as a on preposition। on a bicycle, bicycle के ऊपर, on a ship, on a horse, है ना, तो here we use as a on preposition। clear student? Okay, so next one is preposition of direction or movement। Here we use direction and movement। Yes, कोई भी चीज डायरेक्ट हो रही है, यहाँ से वहां पर जा रही है, किसी भी चीज में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, so here we use as a preposition of direction and movement। देखिए, preposition of direction are used to show movement from one place to another। जो डायरेक्शन है हमको क्या शो करे, कोई भी एक मूवमेंट बता रही है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं। So these prepositions are most often used with the verb of motion and found after the verb। तो देखिए ये जो preposition है मोस्टली हम यूज की जाती है किसके साथ, verb के साथ, जिसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मींस गति हो रही है, are found after verbs। और कहाँ पाई जाती है, verbs के बाद में। For example, we went to London, a verb is here went। अब here we use as a preposition to London, तो हमने देखा था कि most often used with verb के साथ यूज हो रही है, और are found after verbs, और verb क्या है, went, तो उसके बाद ही दिखाई दे रही है हमको ये we went to London। clear? next is he went up the hill। up के लिए क्या होता है, ऊपर जाने के लिए, है ना, तो up here we use as a preposition। clear student? नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी रैन अप द स्टेयर्स। आप देख रहे हैं शी रैन अप द स्टेयर्स, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है कहाँ हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट इज दे वेंट अप द हिल। अब वो देखिए मूवमेंट, अब यू कैन सी द इमेज, अब जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, नीचे से ऊपर। सो दे इसके लिए आया है, इनके लिए, यस किड्स के लिए आया है, तो दे वेंट अप द हिल, वो हिल पर गए, तो वो क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हियर वी यूज एज अ preposition up। ओके, next is you can see the preposition up and down। the boy climbed up the slide, okay, and the boy climbed down the slide। okay, जो ये हो रहा है, जो boy है क्या कर रहा है, स्लाइड के ऊपर जा रहा है, और जो boy है वो क्या कर रहा है, down means नीचे आ रहा है स्लाइड। so we use as a direction movement। okay, so now these are the preposition of place, preposition of time, and preposition of direction। now we will discuss some more preposition here। yes, the number one is here as a under, where we use as a under preposition। yes, when something is inside water, कोई भी चीज पानी के अंदर हो, तो here we use as a preposition of under। so there is a pencil under the water, यहाँ पर एक पेंसिल है, वो क्या है, पानी के अंदर है। in the sense of presence of something below the surface or level or another things, तो कहाँ पर हम अंडर यूज करते हैं, कि कोई भी जो सेंस हो, उसकी प्रेजेंस हमको पता है कि प्रेजेंस ऑफ समथिंग कोई भी है बिलो द सरफेस, सरफेस के बिलो है मतलब नीचे है, और लेवल ऑफ अनदर थिंग, और दूसरी चीज के नीचे है। ठीक है, सरफेस पे है लेकिन दूसरी चीज के नीचे है। तो हियर द एग्जांपल, द डॉग वेंट अंडर द टेबल। हियर वी यूज एज अंडर, क्यों, क्योंकि क्या है, द सेंस ऑफ जो डॉग है उसकी जो प्रेजेंस है क्या, समथिंग बिलो द सरफेस, क्या है, सरफेस के नीचे है, और द लेवल ऑफ अनदर थिंग, कोई भी जो दूसरी चीज है, अब टेबल है, कोई दूसरी चीज है, टेबल के क्या है, वो बिलो है। अब मान लीजिए कि अंडर द अर्थ बोल दे, तो अर्थ मतलब भूमि के नीचे हो जाता है ना, अंडर द अर्थ यूज करते, तो हियर वी यूज एज अंडर द टेबल, अनदर थिंग किसी के भी नीचे है। नाउ नेक्स्ट वन इज हियर over। so when something is vertically above another thing। अब हम बात कर रहे हैं कि vertically, vertically पता है ना बेटा, आप सीधे ऊपर, तो vertically क्या है, above another thing, हमारे ऊपर क्या है, दूसरी चीज भी है। तो here the example, the sky is over our heads। जो sky है वो बिल्कुल सीधे हमारे सर के ऊपर है, तो here we use as a preposition over। कौन से preposition यूज कर रहे हैं हम, over। now next, move on the next page, use of from।
use of form, yes, first in the sense of departure or detachment, okay, from person, place, time और point. जब भी हम किसी का departure की बात कर रहे हैं, उससे वो चीज अलग हो रही है ना, from person की बात कर सकते हैं, place की कर सकते हैं, time और point की. So for example you can take, yes, he traveled from village to village. वो travel करता है एक village से दूसरे village. So here we use as a from preposition. So here we use as a from, traveled फ्रॉम विलेज टू विलेज. जो ट्रेवल कर रहा है कहाँ कर रहा है, विलेज टू विलेज. अब एक विलेज से दूसरी, मतलब एक विलेज से डिपार्चर हो गया, दूसरे विलेज में पहुंच रहा है, अराइव कर रहा है ना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक विलेज से दूसरे विलेज में पहुंचा है, फिर दूसरे विलेज से तीसरे विलेज में. तो एक में डिपार्चर हो गया, एक में अराइव हो गया. मींस कहने का मतलब कि डिपार्चर हो रहा है. तो इन द सेंस ऑफ डिपार्चर वी यूज फ्रॉम preposition. क्लियर. नेक्स्ट वेयर वी यूज बिफोर preposition, बिफोर डिजीजेस. मतलब कोई भी जो बीमारी होती है उससे पहले हम यूज करते हैं एज अ फ्रॉम preposition. ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. मलेरिया क्या है, एक डिजीज है. मतलब किससे सफरिंग हो रहा है, वो पीड़ित हो रहा है मलेरिया से. तो बिफोर द डिजीज वी यूज फ्रॉम preposition. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट वन इज हियर यूज ऑफ विथ. अब विथ कहां पर यूज करते हैं, यस, इन द सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर. मतलब हमको ये बताना है कि कोई चीज के सेंस का हम बताना है कि वो चीज साथ में है. शी वेंट देयर विद मी, वो वहां गई मेरे साथ. तो हम क्या कर रहे हैं, मेरे साथ. तो टुगेदरनेस मतलब टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या, साथ में. तो क्या हो रहा है, विद मी. प्लीज कम विद मी, मेरे साथ आओ. तो मैंने कौन सा preposition यूज किया, यस, विद. कम विद मी मतलब मेरे साथ आओ. तो हम क्या करते हैं, टुगेदरनेस, साथ के लिए जब हम बात करते हैं, उसका जब सेंस यूज करते हैं तो यूज एज अ विद preposition. क्लियर स्टूडेंट.